What's up, everyone? Prabhu here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is Thursday, 8th of Jan, and today we witnessed one of the most action-packed Sensex weekly expiries. Sensex opened pretty much flat, and the straddles opened at 260, which is one of the lowest I've ever seen. And for the first 2 hours, it was business as usual. The markets चॉप कर रहा था, लो वोलेटाइल मार्केट्स थे, ज्यादा कुछ मूवमेंट आ नहीं रहा था, and the straddle which opened at 260 got crushed to 200 and Nifty was also hovering somewhere around 26,000 levels. But then news आती है कि डोनाल्ड ट्रंप is about to impose 500% tariffs on all the countries which are importing Russian oil, which means he's basically targeting India. And news aate hi, Nifty fell almost 100 points and Sensex also fell almost 400 points. And suddenly there was a sharp repricing in the walls. तो IVs काफी शूट अप हो गए. This is the first time in the last 6 months that we saw expiry day IV repricing. जो स्ट्रैडल 200 रुपए में ट्रेड कर रहा था, within 5 minutes the straddle itself shot up to almost 350, a 70% spike. And even the Nifty straddles, which are of next week, they also spiked from almost 180 to 240 levels. And this kind of took a lot of traders by surprise. And after that, the markets kind of went into a consolidation mode. And yes, it was a manageable expiry, but this whatever 15-20 minutes of commotion, it kind of took a lot of traders off guard. So let's get to the terminal and let's see after this news कल के लिए कैसे trades plan कर सकते हैं and what this news might lead to the further price action. So कल ही हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे markets are about to form some sort of a double top pattern here and ये जो breakout fail हो चुका है and the markets are back in the consolidation range. But everyone was expecting consolidation होगा तो भी markets 26,000 को respect करेगा and 26,000 के ऊपर trade करने वाला है and the volatility will continue to contract and budget को catalyst करके use करके markets थोड़ा ऊपर जाने वाला है. This was the consensus in the markets and both the option chain data, the commitment of traders data and सारे का सारा चीज इसी को point कर रहा था. VIX भी continuously नीचे जा रहा था and yes, even though the follow through was not there after this breakout, people were kind of happy to write 26,000 puts because यहाँ पे भी एक अच्छा खासा एक resistance था and कल market उसी point से यहाँ पे एक doji candle type of candle बनाया था and people were not ready for the markets breaching 26,000 levels. A lot of people had sold 26,000 puts both on weekly and monthly contracts and suddenly जब 26,000 breach हो गया, that too with a lot of ferocity, so suddenly there was a wall repricing. So today's price action based on the news again has made the markets a little bit of bearish. तो 26,000 के नीचे close दे चुका है and decisively 26,000 के नीचे markets trade कर रहा है. We are trading somewhere around 25,850 levels. तो कल के लिए market कहाँ पे open होने वाला है and कल का price action क्या होने वाला है उसके basis पे future course of action decide होने वाला है. Because आज markets के markets के time पे news आया हुआ है, so markets usually need some sort of a time to actually assimilate the news and actually see what this news has real impact in the एक्चुअल करंट सिनेरियो में जो इम्पैक्ट आने वाला है वो इम्पैक्ट को डिसाइड करने के लिए लोगों को टाइम चाहिए उसको असिमुलेट करने के लिए. तो यहाँ पे जो मूव आया है आई वुड से दिस इज जस्ट अ नी जर्क रिएक्शन बिकॉज यहाँ पे अभी तक वो इम्पोजिशन नहीं हुआ है. जो टैरिफ 500% का टैरिफ की बात हो रही है वो आया नहीं है. इट्स जस्ट दैट ट्रंप हैज गिवन अ नॉड फॉर इम्पोजिंग दिस काइंड ऑफ अ टैरिफ. तो उसके बाद फिर से बातचीत होगी एंड बहुत ज़्यादा लाइक पिंग पोंग होने वाला है. सो वी डोंट नो बट अगेन वी आर बैक इन द न्यूज़ बेस्ड फ्लोस. अभी मार्केट्स में जो भी मूव्स आने वाला है वो न्यूज़ के हिसाब से मार्केट्स में मूव्स आने वाला है. तो प्राइस एक्शन थोड़ा बहुत बैक सीट लेने वाली है. सो गोइंग फॉरवर्ड अप अंटिल एटलीस्ट द बजट इज कंप्लीटली ओवर एंड टिल द मार्केट फाइंड्स अ क्लियर कट डायरेक्शन आई वुड बी ट्रेडिंग विथ स्मॉल साइज. ठीक है, आज का क्लियर कट एक ट्रेंडिंग डे था. आई मीन ऑफ कोर्स प्राइस एक्शन के बेसिस पे भी ट्रेड करते तो हमको क्लियर कट ट्रेंडिंग डे मिला था बट नोबडी एक्सपेक्टेड 26,000 टू बी ब्रीच्ड. अगर वॉल्स की बात करें तो निफ्टी की भी वॉल्स जो अगले हफ्ते का जो स्ट्रैडल था यू कैन नोटिस दैट विच वॉज ट्रेडिंग एट समवेयर अराउंड 180 स्पाइक्ड ऑल द वे टिल 230 240. आई थिंक इधर 240 कैप्चर नहीं हुआ है. एट वन पॉइंट आई वॉज सीइंग दैट द स्ट्रैडल हैड रीच 240. अगर सेंसेक्स की वॉल्स की बात करें तो दिस वॉज अ वन ऑफ काइंड ऑफ एन इवेंट बिकॉज लास्ट 5-6 महीने से ऐसे इवेंट नहीं हुआ था. मार्केट्स में जरूर डेल्टा मूव आया था. मार्केट्स में एक डायरेक्शनल डेल्टा स्पाइक जरूर देखने को मिलता था. मार्केट्स दोनों तरफ 100-200 पॉइंट्स मूव करता था कंटिन्यूसली इन द स्पैन ऑफ 5 मिनट्स बट द स्ट्रैडल इटसेल्फ नेवर स्पाइक्ड. बट आज एट द मनी स्ट्रैडल आई मीन द इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ऑल्सो स्पाइक्ड. 200 रुपीज का जो स्ट्रैडल था वो ऑलमोस्ट 330-340 के आसपास पहुंच गया था. बट उसके बाद ऑफकोर्स द मार्केट्स वेंट इनटू कंसोलिडेशन एंड पीपल हु वेटेड यहाँ पे उन लोगों के लिए
पहले स्क्यू ट्रेड भी काफी अच्छा डेवलप हो चुका था, कॉल रेशियोज एंड पुट रेशियोज काफी अच्छे प्राइस पे मिल रहे थे, बट अगेन nobody would be anticipating this kind of a move because last 3-4-5 महीने से markets are not giving these kinds of an opportunity. Is it the start of a new regime or is it just because एक न्यूज आया है मार्केट में? लेट मी नो इन द कमेंट्स. ठीक है, तो कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं हम लोग? निफ्टी के अगर ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो यू कैन नोटिस दैट अ लॉट ऑफ कॉल्स हैव बीन शॉर्ट. 26,000 कॉल शॉर्ट हुआ है, 26,000 के पुट्स अनवाइंड हो चुके हैं, बट अगेन पीपल आर स्टिल यूजिंग दिस डिप टू एक्चुअली शॉर्ट स्लाइटली OTM एंड CTM पुट्स. 25,700 का, 25,800 का, इवन 25,900 का भी पुट्स को ज्यादातर शॉर्ट किए हैं, विच गिव्स एन ओपिनियन दैट जो बड़े प्लेयर्स है दे आर नॉट गेटिंग स्केयर्ड ऑफ दिस मूव एंड दे आर थिंकिंग दिस एज जस्ट सम सॉर्ट ऑफ अ नी जर्क रिएक्शन. तो कल का एक प्राइस एक्शन वेट करके हमको देखना पड़ेगा एंड उसके बाद हम एक डिसीजन ले सकते हैं. तो कल के लिए मेरे हिसाब से वी शुड नॉट बी एक्चुअली टेकिंग एनी ट्रेड्स. अगर ट्रेड्स लेते तो भी प्रॉब्ली 20% 25% से ज़्यादा साइज हम लोग ट्रेड नहीं करना चाहिए, बिकॉज न्यूज़ बेस्ड मूव्स होता है एंड प्राइस एक्शन फॉलो नहीं करता है एंड यहाँ पे हम लोगों को फंसना नहीं चाहिए. तो आई विल नॉट बी गिविंग एनी ऑफ द ट्रेड्स फॉर टुमारो, बट अगर हमको प्लान करना पड़ेगा तो वो प्लान मेजरली डिपेंड करता है मार्केट्स कहाँ पे ओपन होने वाला है. तो अगर मार्केट्स बड़ा गैप अप खुल जाता है तो देन मार्केट्स विल बी वोलेटाइल विद इन दिस रेंज, बट अगेन ये जो रेंज है काफ़ी वाइड रेंज हो जाता है. 26,400 ऊपर की तरफ एंड 25,900 नीचे की तरफ, ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स ऑन द अपसाइड एंड 250 पॉइंट्स ऑन द डाउनसाइड, एंड उसके बीच हमारे पास कोई अच्छा प्राइस एक्शन पॉइंट्स नजर नहीं आ रहा है, राइट. एंड अगर मार्केट्स गैप डाउन खुल जाता है देन अगेन एक फ्रेश रेंज में मार्केट्स ट्रेड करना चाहिए, ये रेंज एंड ये रेंज के बीच. बट अगेन यहाँ पे एक मार्केट खुलता है, लेट्स से 25,700 के नीचे खुलता है, तो देन आई विल बी वेटिंग फॉर द फर्स्ट 10 और 15 मिनट्स कैंडल, एंड अगर वो 15 मिनट्स के अंदर ही ये लो अगर टूट जाता है देन वी कैन गो in the direction of the trades. Apart from that, I'll not try to nitpick minor supports and minor resistance levels. I'll not try to nitpick these minor inflection points, because जब न्यूज़ आती है तभी ऐसे जो लेवल्स है काम करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होता है. ऑलराइट, एंड टुमारो अगेन एनीवे इट इज अ फ्राइडे, आपको टीटा के भी ज़्यादा नहीं मिलने वाला है. ओनली यू हैव टू गेट लाइक प्योरली डेल्टा बेस्ड ट्रेड्स. सो इट इज बेटर टू अवॉइड द डेज विच हैव अ लॉट ऑफ न्यूज़ बेस्ड फ्लोज. ऑलराइट, सो दिस इज माई टेक फॉर टुमारो. बट अगर आपको कुछ ट्रेड्स मिलता है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स. बट अगेन एज ऑफ नाउ आई विल नॉट गेट इनटू द स्पेकुलेशन ऑफ व्हाट द प्राइस एक्शन माइट डू टुमारो. ऑलराइट, आई विल सी यू गाइस द नेक्स्ट टाइम. टिल देन, टेक केयर, बाय बाय. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.